اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ 8ویں پارے کی سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں میں برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، کہ پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا
हम तो तुम्हें बेअक्ली में मुब्तला समझते हैं और हमें गुमान है कि तुम झूठे हो। उसने कहा, ए बिरादरान कौम, मैं बेअक्ली में मुब्तला नहीं हूँ, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। तुमको अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और तुम्हारा ऐसा खैर ख्वाह हूँ जिस पर भरोसा किया जा सकता है। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे रब तुम्हारे पास खुद तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के जरिए से तुम्हारे रब की याद दुहानी आई ताकि वो तुम्हें खबरदार करे। भूल न जाओ कि तुम्हारे रब ने नूह की कौम के बाद तुमको उसका जानशीन बनाया और तुम्हें खूब तनोमंद किया। बस अल्लाह की कुदरत के करिश्मों को याद रखो, उम्मीद है कि फलाह पाओगे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें और उन्हें छोड़ दें जिसकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं? अच्छा तो ले आ वो अजाब जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू सच्चा है। उसने कहा, तुम्हारे रब की फिटकार तुम पर पड़ गई और उसका गजब टूट पड़ा। क्या तुम मुझसे उन नामों पर झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं, जिनके लिए अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की है? अच्छा तो तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। आखिरकार हमने अपनी मेहरबानी से हूद और उसके साथियों को बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जो हमारी आयात को झुटला चुके थे और ईमान लाने वाले न थे। और समूद की तरफ हमने उनके भाई साले को भेजा। उसने कहा, है बिरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की खुली दलील आ गई है। ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी के तौर पर है, लिहाजा इसे छोड़ दो कि खुदा की जमीन में चलती फिरे। उसको किसी बुरे इरादे से हाथ न लगाना, वरना एक दर्दनाक अजाब तुम्हें आ लेगा। याद करो वक्त जब अल्लाह ने कौम आद के बाद तुम्हें उसका जानशीन बनाया और तुमको जमीन में ये मंजिलत बख्शी कि आज तुम उसके हमवार मैदानों में आलिशान महल बनाते और उसके पहाड़ों को मकानात की शक्ल में तराशते हो। बस उसकी कुदरत के करिश्मों से गाफिल न हो जाओ और जमीन में फसाद बर्पा न करो। उसकी कौम के सरदारों ने जो बड़े बने हुए थे कमजोर तबके के उन लोगों से जो ईमान ले आए थे कहा, क्या तुम वाकई जानते हो कि सालेह अलैहिस्सलाम अपने रब का पैगंबर है? उन्होंने जवाब दिया, बेशक जिस पैगाम के साथ वो भेजा गया है उसे हम मानते हैं। उन बड़ाई के मुद्दइयों ने कहा, जिस चीज को तुमने माना है हम उसके मुनकिर हैं। फिर उन्होंने उस ऊंटनी को मार डाला और पूरे तमर्रुद के साथ अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर गुजरे और साले से कह दिया कि ले आओ वो अजाब जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू वाकई पैगंबरों में से है। आखिरकार एक दहला देने वाली आफत ने उन्हें आ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए। और साले कहता हुआ उनकी बस्तियों से निकल गया, क्या है मेरी कौम, मैंने अपने रब का पैगाम तुझे पहुंचा दिया और मैंने तेरी बहुत खैर ख्वाही की, मगर मैं क्या करूं कि तुझे अपने खैर ख्वाह पसंद ही नहीं है। और लूत को हमने पैगंबर बनाकर भेजा। फिर याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो कि वो फैश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया? तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। हकीकत यह है कि तुम बिल्कुल ही हद से गुजर जाने वाले लोग हो। मगर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि निकालो इन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाक बाग बनते हैं ये। आखिरकार हमने लूत और उसके घर वालों को बजुस उसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में थी बचाकर निकाल दिया और उस कौम पर बरसाई एक बारिश। फिर देखो कि उन मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। और मदयन वालों की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ऐ बिरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। तुम्हारे पास
तुम्हारे रब की साफ रहनुमाई आ गई है, लिहाजा वजन और पैमाने पूरे करो, लोगों को उनकी चीजों में घाटा न दो और जमीन में फसाद बर्पा न करो जबकि उसकी इस्लाह हो चुकी है। इसी में तुम्हारी भलाई है अगर तुम वाकई मोमिन हो, और जिंदगी के हर रास्ते पर रहजन बनकर न बैठ जाओ कि लोगों को खौफजदा करने और ईमान लाने वालों को खुदा के रास्ते से रोकने लगो और सीधी राह को टेढ़ा करने के दर पे हो जाओ। याद करो वो जमाना जबकि तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें बहुत कर दिया, और आंखें खोल कर देखो कि दुनिया में मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। अगर तुम में से ये गिरोह उस तालीम पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूं ईमान लाता है और दूसरा ईमान नहीं लाता, तो सब्र के साथ देखते रहो यहां तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। यहां से 9वें पारे की तर्जुमानी शुरू हो रही है। उसकी कौम के सरदारों ने जो अपनी बड़ाई के घुमंड में मुब्तला थे उससे कहा कि ऐ शुएब, हम तुझे और उन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुम लोगों को हमारी मिल्लत में वापिस आना होगा। शुएब ने जवाब दिया, क्या जबरदस्ती हमें फेरा जाएगा? ख्वाह हम राजी न हो, हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले होंगे अगर तुम्हारी मिल्लत में पलट आए, जबकि अल्लाह हमें इससे नजात दे चुका है। हमारे लिए तो उसकी तरफ पलटना अब किसी तरह मुमकिन नहीं, इल्ला है कि खुदा हमारा रब ही ऐसा चाहे। हमारे रब का इल्म हर चीज पर हावी है, उसी पर हमने एतमाद कर लिया। ऐ रब, हमारे और हमारे कौम के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दे, और तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। उसकी कौम के सरदारों ने जो उसकी बात मानने से इनकार कर चुके थे आपस में कहा, अगर तुमने शुएब की पैरवी कबूल कर ली तो बर्बाद हो जाओगे, मगर हुआ ये कि दहला देने वाली आफत ने उनको आ लिया और अपने घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए। जिन लोगों ने शुएब को झुटलाया वह ऐसे मिटे कि गोया कभी इन घरों में बसे ही न थे। शुएब के झुटलाने वाले ही आखिरकार बर्बाद होकर रहे, और शुएब ये कहकर उनकी बस्तियों से निकल गया, क्या बिरादरान कौम, मैंने अपने रब के पैगामात तुम्हें पहुंचा दिए और तुम्हारी खैर ख्वाही का हक अदा कर दिया। अब मैं उस कौम पर कैसे अफसोस करूं जो कबूल हक से इनकार करती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में नबी भेजा हो और उस बस्ती के लोगों को पहले तंगी और सख्ती में मुब्तला न किया हो, इस ख्याल से कि शायद वो आजिजी पर उतराएं। फिर हमने उनकी बदहाली को खुशहाली से बदल दिया, यहां तक कि वो खूब फले फूले और कहने लगे कि हमारे असलाफ पर भी अच्छे और बुरे दिन आते ही रहे हैं। आखिरकार हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया और उन्हें खबर तक न हुई। अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तक़वे की रविश इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने तो झुटलाया, लिहाजा हमने उस बुरी कमाई के हिसाब में उन्हें पकड़ लिया जो समेट रहे थे। फिर क्या बस्तियों के लोग अब इससे बेखौफ हो गए हैं कि हमारी गिरफ्त कभी अचानक उन पर रात के वक्त ना आ जाएगी जबकि वो सोए पड़े हों, या उन्हें इत्मीनान हो गया हो कि हमारा मजबूत हाथ कभी एकाएक उन पर दिन के वक्त ना पड़ेगा जबकि वो खेल रहे हों। क्या ये लोग अल्लाह की चाल से बेखौफ हैं? हालांकि अल्लाह की चाल से वही कौम बेखौफ होती है जो तबाह होने वाली है। और क्या उन लोगों को जो साबिक अहले जमीन के बाद जमीन के वारिस होते हैं इस अमर वाक़ई ने कुछ सबक नहीं दिया कि अगर हम चाहें तो उनके खुसूरों पर उन्हें पकड़ सकते हैं, मगर वो सबक आमोज हक़ाइक़ से तगाफुल बरतते हैं और हम के दिलों पर मोहर लगा देते हैं, फिर वो कुछ नहीं सुनते। ये कौमें जिनके किस्से हम तुम्हें सुना रहे हैं तुम्हारे सामने मिसाल में मौजूद हैं। उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, मगर जिस चीज को एक दफा झुटला चुके थे
پھر اسے ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ پھر ان قوموں کے بعد جس کا ذکر اوپر کیا گیا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ پر دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے عنچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلے میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ کہنے لگے، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً ایک کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا، تو اس کا نتیجہ تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئی تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرمانبردار ہوں۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا۔ ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھو کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے
मगर उनका हाल ये था कि जब अच्छा जमाना आता तो कहते कि हम इसी के मुस्तहिक हैं, और जब बुरा जमाना आता तो मूसा और उसके साथियों को अपने लिए फाल बद ठहराते। हालांकि दर हकीकत उनकी फाल बद तो अल्लाह के पास थी, मगर इनमें से अक्सर बे इल्म थे। उन्होंने मूसा से कहा, तू हमें मशहूर करने के लिए ख्वाह कोई निशानी ले आए, हम तो तेरी बात मानने वाले नहीं हैं। आखिरकार हमने उन पर तूफान भेजा, टिड्डी दल छोड़े, सुरसुरियां फैलाई, मेंढक निकाले और खून बरसाया। ये सब निशानियां अलग अलग करके दिखाएं, मगर वो सरकशी ही किए चले गए और वो बड़े ही मुजरिम लोग थे। जब कभी उन पर बला नाजिल हो जाती तो कहते, ऐ मूसा, तुझे अपने रब की तरफ से जो मनसब हासिल है उसके बिना पर हमारे हक में दुआ कर। अगर अब कि तू हम पर से बला टलवा दे तो हम तेरी बात मान लेंगे और बनी इसराइल को तेरे साथ भेज देंगे। मगर जब हम उन पर से अपना अजाब एक वक्त मुकर्रर तक के लिए जिसको बहरहाल पहुंचने वाले थे हटा लेते तो एक लख्त अपने अहद से फिर जाते। तब हमने उनसे इंतकाम लिया और उन्हें समुंदर में गरक कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया था और उनसे बेपरवाह हो गए थे। और उनकी जगह हमने उन लोगों को जो कमजोर बनाकर रखे गए थे उस सरजमीन के मशरिक और मगरिब का वारिस बना दिया, जिसे हमने बरकतों से मालामाल किया था। इस तरह बनी इसराइल के हक में तेरे रब का वादा खैर पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने सब्र से काम लिया था। और हमने फिरौन और उसकी कौम का वो सब कुछ बर्बाद कर दिया जो बनाते और चढ़ाते थे। बनी इसराइल को हमने समुंदर से गुजार दिया, फिर वो चले और रास्ते में एक ऐसी कौम पर उनका गुजर हुआ जो अपनी चंद बुतों की गिरविदा बनी हुई थी। कहने लगे, ऐ मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा माबूद बना दे जैसे इन लोगों के माबूद हैं। मूसा ने कहा, तुम लोग बड़ी नादानी की बातें करते हो। ये लोग जिस तरीके की पैरवी कर रहे हैं वो तो बर्बाद होने वाला है, और जो अमल वो कर रहे हैं वो सरासर बातिल है। फिर मूसा ने कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और माबूद तुम्हारे लिए तलाश करूं, हालांकि वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें दुनिया भर की कौमों पर फजीलत बख्शी है। और अल्लाह फरमाता है कि वो वक्त याद करो जब हमने फिरौन वालों से तुम्हें नजात दी, जिसका हाल ये था कि तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला रखते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते और तुम्हारी औरतों को जिंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। हमने मूसा को 30 शब और रोज के लिए कोई सीना पर तलब किया और बाद में 10 दिन का और इजाफा कर दिया। इस तरह उसके रब की मुकर्रर करदा मुद्दत पूरे 40 दिन हो गई। मूसा ने चलते हुए अपने भाई हारून से कहा कि मेरे पीछे तुम मेरी कौम में मेरी जानशीनी करना और ठीक काम करते रहना और बिगाड़ पैदा करने वालों के तरीके पर न चलना। जब वो हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर पहुंचा और उसके रब ने उससे कलाम किया तो उसने इल्तिजा की कि ऐ रब, मुझे याराए नजर दे कि मैं तुझे देखूं। फरमाया, तू मुझे नहीं देख सकता, हाँ जरा सामने की पहाड़ की तरफ देख, अगर वो अपनी जगह कायम रह जाए तो अलबत्ता तू मुझे देख सकेगा। चुनांचे उसके रब ने जब पहाड़ पर तजल्ली की तो उसे रेजा रेजा कर दिया और मूसा गश खाकर गिर पड़ा। जब होश आया तो बोला, पाक है तेरी जात, मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूं और सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं हूं। फरमाया, ऐ मूसा, मैंने तमाम लोगों पर तरजीह देकर तुझे मुंतखब किया कि मेरी पैगंबरी करे और मुझसे हम कलाम हो। पर जो कुछ मैं तुझे दूं उसे ले और शुक्र बजा ला। उसके बाद हमने मूसा को हर शोबे जिंदगी के मुताल्लिक नसीहत और हर पहलू के मुताल्लिक वाज़ेह हिदायत तख्तियों पर लिख कर दे दी और उससे कहा, इन हिदायत को मजबूत हाथों से संभाल और अपनी कौम को हुक्म दे कि उसके बेहतर मफहूम की पैरवी करें। अन करीब मैं तुम्हें फासिकों के घर दिखाऊंगा। मैं अपनी निशानियों से
उन लोगों के निगाहें फेर दूंगा जो बगैर किसी हक के जमीन में बड़े बनते हैं। वो ख्वाह कोई निशानी देख लें, कभी उस पर ईमान ना लाएंगे। अगर सीधा रास्ता उनके सामने आए तो उसे इख्तियार न करेंगे, और अगर टेढ़ा रास्ता नजर आए तो उस पर चल पड़ेंगे, इसलिए कि उन्होंने हमारे निशानियों को झुटलाया और उनसे बेपरवाही करते रहे। हमारे निशानियों को जिस किसी ने झुटलाया और आखिरत की पेशे का इनकार किया, उसके सारे आमाल जाया हो गए। क्या लोग इसके सिवा कुछ और जजा पा सकते हैं कि जैसा करें वैसा भरें। मूसा के पीछे उसकी कौम के लोगों ने अपने जेवरों से एक बछड़े का पुतला बनाया जिसमें से बैल की सी आवाज निकलती थी। क्या इन्हें नजर न आता था कि वो न उनसे बोलता है न किसी मामले में उनकी रहनुमाई करता है, मगर फिर भी उन्होंने उसे माबूद बना लिया और वो सख्त जालिम थे। फिर जब उनकी फरेब खुर्दगी का तिलसिम टूट गया और उन्होंने देख लिया कि दरहकीकत जो गुमराह हो गए हैं, तो कहने लगे क्या हमारे रब हम पर रहम फरमा और हमसे दरगुजर कर, तो हम पर रहम ना फरमाया। अगर हमारे रब कहने लगे कि अगर हमारे रब हम पर रहम ना फरमाया और हमसे दरगुजर ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उधर से मूसा गुस्से और रंज में भरा हुआ अपनी कौम की तरफ पलटा। आते ही उसने कहा, बहुत बुरी जानशीनी की तुम लोगों ने मेरे बाद। क्या तुमसे इतना सब्र ना हुआ कि अपने रब के हुक्म का इंतजार कर लेते और तख्तियां फेंक दी और अपने भाई हारून के सर के बाल पकड़कर उसे खींचा। हारून ने कहा, ऐ मेरी माँ के बेटे, इन लोगों ने मुझे दबा लिया और करीब था कि मुझे मार डालते, पर तू दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका न दे और इस जालिम गुरोह के साथ मुझे शामिल न कर। तब मूसा ने कहा, ऐ रब, मुझे और मेरे भाई को माफ कर और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा, तो सबसे बढ़कर रहीम है। जवाब में इरशाद हुआ कि जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया वो जरूर अपने रब के गजब में गिरफ्तार होकर रहेंगे और दुनिया की जिंदगी में जलील होंगे। झूठ गढ़ने वालों को हम ऐसी ही सजा देते हैं, और जो लोग बुरे अमल करें फिर तौबा कर लें और ईमान ले आए तो यकीनन इस तौबा व ईमान के बाद तेरा रब दरगुजर और रहम फरमाने वाला है। फिर जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने वो तख्तियां उठा ली जिनकी तहरीर में हिदायत और रहमत थी उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं, और उसने अपनी कौम के 70 आदमियों को मुंतखब किया ताकि वो इसके साथ हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर हाजिर हों। जब उन लोगों को एक सख्त जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा ने अर्ज किया, ऐ मेरे सरकार, आप चाहते तो पहले ही इनको और मुझे हिलाक कर सकते थे। क्या आप इस कसूर में जो हम में से चंद नादानों ने किया था हम सबको हिलाक कर देंगे? ये तो आपकी डाली हुई एक आजमाइश थी जिसके जरिए से आप जिसे चाहते हैं गुमराही में मुब्तला कर देते हैं और जिसे चाहते हैं हिदायत बख्श देते हैं। हमारे सरपरस्त तो आप ही हैं, बस हमें माफ कर दीजिए और हम पर रहम फरमाइए। आप सबसे बढ़कर माफ फरमाने वाले हैं और हमारे लिए इस दुनिया की भलाई भी लिख दीजिए और आखिरत की भी। हमने आपकी तरफ रुजू कर लिया। जवाब में इरशाद हुआ, सजा तो मैं जिसे चाहता हूं देता हूं, मगर मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है और उसे मैं उन लोगों के हक में लिखूंगा जो नाफरमानी से परहेज करेंगे, ज़कात देंगे और मेरी आयात पर ईमान लाएंगे। बस आज ये रहमत उन लोगों का हिस्सा है जो इस पैगंबर नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी अख्तियार करें, जिसका जिक्र इन्हीं अपने हाथ और रात और इंजील में लिखा हुआ मिलता है। वो उन्हीं नेकी का हुक्म देता है, बदी से रोकता है, उनके लिए पाक चीजें हलाल और नापाक चीजें हराम करता है और उन पर से वो बोझ उतारता है जो उन पर लदे हुए थे और वो बंदिशें खोलता है जिनमें वो जकड़े हुए थे। लिहाजा जो लोग इस पर ईमान लाएं और उसकी हिमायत और नुसरत करें और उस रोशनी की पैरवी अख्तियार करें जो उसके साथ नाजिल की गई है,
وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔